Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So यार first of all thank you for providing love and support on my previous videos और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो पे भी उतना ही love and support दोगे। तो यार इस वीडियो के अंदर I will be doing a interview type video with अर्श गोयल सर। ठीक है, अर्श गोयल सर की जो प्रोफाइल है वो काफी ज्यादा डायनेमिक है। उन्होंने इंटर्नशिप्स कर रखी है सैमसंग, इसरो एंड कोडशेप में, और वो डीएससी लीड भी रह चुके हैं हमारे कॉलेज के एनआईटी जलंधर के। तो हम उनकी कोडिंग जर्नी से काफी सारे इंसाइट्स ले रहे होंगे, क्या क्या उन्हें दिक्कत आई और उन्होंने कैसे उस दिक्कतों को टैकल किया, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मिल रही होंगी आपको। तो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। और यार इस वीडियो में मेरे को ज्वाइन करेंगे मेरे क्लासमेट अमनदीप सिंह। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड के संग जरूर शेयर करना। Hello Arshad, first of all thank you for coming on my channel, and Arshad was a person who is really inspiring for you all. तो सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। Thank you so much, Vaibhav. Thank you so much, Aman, for inviting me on your channel. So, just a brief introduction about me. My name is Arsh Goel. I am currently a final year undergraduate at NIT Jalandhar. When I talk about my interests, so I have been into a lot of technical fields. Like I have explored making projects on web technologies, on Android technologies, machine learning, data science. I've done some internships in these domains. Like I've done internship at Samsung Bangalore. I've done internship at ISRO, at Bitgrid. Recently, I did one internship at CodeChef, and that is like a part of an academy. So these are some of my experiences that I have done before. Also, I love to talk to people, love to interact with people. I used to take part in hackathons. Like we have even won some hackathons. So like this is basically about me. And when I talk about certain community sites, so I have like a knack of going to events, speaking with a lot of people, like giving workshops on certain technologies, seminars, and I have also been the DSC lead on for NIT Jalandhar for the year 2019-2020, and certain other programs I have been a part of. Maybe it's Amazon Web Services, Cloud Associate, or maybe you can say Microsoft student partners. So there are a lot of things that I've been a part of, and it has been an amazing journey. Yeah. So, sir, you have been done a lot of things. So, how you started and managed coding in first year itself? Because you have done lots of things from initially. Like literally, if I tell you that first year में तो ऐसा नहीं था कि कोडिंग स्टार्ट की थी, एंड इवन आई वाज नॉट अवेयर कि कोडिंग ऐसे कोई चीज होती है. आई वाज फ्रॉम अ फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड. तो 12th में फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड था. फर्स्ट ईयर में यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर तो कोडिंग का सब्जेक्ट भी नहीं था. आई गॉट सी प्रोग्रामिंग इन सेकंड सेमेस्टर. तो तब आई वाज इंट्रोड्यूस टू कि कैसे प्रोग्रामिंग होती है, क्या होता है. तो that was the first time that I got to see. तो फर्स्ट ईयर में तो आई वोंट से कि मैंने कुछ किया है. फर्स्ट ईयर में तो बस नॉर्मल वो सी लैंग्वेज पढ़ी है. उसके बाद when we came to third semester, तो थर्ड सेमेस्टर से we started studying up concepts of data structural algorithms. Like I'm from EC background particularly, तो EC के students के लिए थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि they have to manage EC के subjects also, साथ में तुम्हारे coding के subjects also, ताकि like you can sit for placements या if you are looking forward to move into IT field तो तुम्हारे लिए आसान हो. तो थर्ड सेमेस्टर में along with EC subjects you have to manage your computer science fundamentals and your data structural algorithms. You have to practice questions from sites like GFG, LeetCode. So that was the routine. After that I started a club known as Coding Club NIT Jalandhar, which further we shifted to DSC NIT Jalandhar. So I was one of the I was the one who started at NIT Jalandhar. Like we got an official recognition and everything for the club here at NIT Jalandhar. So after that, like I was involved in a lot of communities, talking to people. We organized a lot of events. Like in my fourth semester, I remember like we built some projects also on related to machine learning, and I took certain workshops for students who came in, like for my juniors. So like मतलब workshops जब आपने बिल्कुल स्टार्टिंग ही की थी तो आप कौन से रिसोर्सेज मतलब प्रेफर करते हो? किसी ने जस्ट स्टार्टिंग की है जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, तो आई वुड से कि कोई भी पर्सन को अगर स्टार्टिंग करनी है तो सी लैंग्वेज तो कॉलेज वाले सिखा देते हैं. लाइक तुम्हें एक यशवंत कानेतकर की लेट अस सी बुक लगी होगी. yes, sir. तो उससे तुम्हें सी लैंग्वेज सीखने को बोलते हैं. मतलब दैट बुक इज वेरी रिसोर्सफुल अगर तुम्हें स्टार्ट करनी है, सी लैंग्वेज पढ़नी है. उसमें मतलब काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. दैट इज फाइन, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग ना. वो तो मतलब
बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद यू हैव टू मूव टू सम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मे बी C++ और जावा। तो सिंटेक्स इज क्लोजली सिमिलर टू सी, मतलब अगर C++ और जावा का अगर हम सिंटेक्स देखें तो सी के सिमिलर होता है, बट देयर आर सम न्यू थिंग्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड, लाइक क्लासेस कैसे बनती हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं। तो दैट थिंग आई लर्न फ्रॉम सर्टेन यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, सर्टेन मीडियम आर्टिकल्स। तो ऊप्स हमें थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट भी आता है। तो वो सब्जेक्ट एक मतलब बुक, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ द बुक, वो बुक प्रिस्क्राइब की थी, उसके थ्रू आई गॉट टू नो अबाउट C++। फिर उसके बाद रेगुलरली लाइक डूइंग 2-3 क्वेश्चंस ऑन साइट्स लाइक GFG, लाइक Geeks for Geeks is a site where you will get a lot of questions on all the topics, जैसे arrays हो गया, stacks हो गया, linked list हो गया, queues हो गया। तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के टॉपिक्स हैं, एंड दीज आर ओनली लाइक इनके ही क्वेश्चंस आते हैं सारे प्लेसमेंट इंटरव्यूज में या हर जगह। तो इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने स्टार्ट किए, देन मूव्ड ऑन टू लर्निंग कुछ डेवलपमेंट का पार्ट, जैसे लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे थे या लोग एंड्रॉइड सीख रहे थे, कुछ लोग मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे थे। तो देन आई एक्सप्लोर्ड, बट फोर्थ सेमेस्टर में आए, मतलब मैंने कुछ मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर किए, पाइथन एक्सप्लोर की, पाइथन में कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए छोटे। तो दैट वाज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। ओके। और सर मतलब जैसे आपने बुक्स रेकमेंड की, तो कई बच्चे होते हैं मतलब पढ़ने का शौक नहीं होता, मतलब वीडियो लेक्चर्स ज़्यादा देखते हैं, तो उनके लिए कौन से मतलब आप रेकमेंड करोगे? क्योंकि काफ़ी हैं आजकल मार्केट में, आपको पता ही है कि वीडियो लेक्चर्स भी। नहीं, इट इज की मतलब ये ना हर किसी का अपना अपना होता है, कि किसी को तो वीडियो से समझ आता है, किसी को बुक से पढ़ के ज्यादा समझ आता है। एंड आई वुड रिकमेंड कि एक डेटा स्ट्रक्चर की बुक आती है नरसिम्हा कारुमांची की, मतलब वो बहुत रिसोर्सफुल बुक है, उसमें मतलब बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं, तो मैं सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कवर्ड हैं। एंड अगर किसी को स्टार्ट करनी है ना, तो उसकी थ्योरी पढ़ ले, उसमें जितने सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं वो पढ़ ले, तो उसका बेस क्लियर हो जाएगा, अगर कोई बंदा बुक प्रेफर कर रहा है कोई पढ़ने के लिए। ओके। ठीक है। वीडियो लेक्चर्स, इफ आई से कि मतलब वीडियो लेक्चर्स में ऐसा होता है ना कि यू गेट अ कंप्लीट क्लैरिटी कि हाँ यार ये बंदा ऐसे ऐसे समझा रहा है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो आजकल तो लाइक आई वुड नॉट रेकमेंड एनीबॉडी, मैं तो कहूंगा कि आप YouTube पे देखो, हमारे टाइम पे तो कुछ नहीं था। आजकल YouTube पे इतने ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इतने ज्यादा लोगों ने डीएस एल्गोस के वीडियोस बना दिए हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के वीडियोस बना दिए हैं, कि तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इट्स योर ओन डेडिकेशन कि तुम कितने मतलब उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाते हो। जैसे मैं आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, जब हम 2017 या 18 में थे, तब लाइक इतने रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल थे, people were not active on LinkedIn, people were not active on YouTube। तो तब ना हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे, ना जितने तुम्हारे पास अब अवेलेबल हैं। तो people took paid courses as well, मतलब आजकल थोड़े से कम हो गए हैं लोग पेड कोर्सेज नहीं ले रहे हैं, बट इट्स योर चॉइस, मतलब ऐसा कोई रेकमेंडेड नहीं है कि तुम पेड कोर्स ही लो तो ही तुम्हारा मतलब अच्छा होगा। पेड कोर्सेज भी ले सकते हो, मतलब उसमें ये है कि अगर तुम खुद से तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं है कुछ करने की, तो पेड कोर्सेज में ऐसा होता है कि तुमने पैसे दिए हैं, तो हाँ यार पैसे दिए हैं तो हम कुछ पढ़ लेते हैं। इट इज ऑल लाइक। तो सर आपने ना काफी चीजें मैनेज करी अपनी स्टडीज के साथ साथ, है ना, मतलब आप डीएससी लीड भी रहे और काफी ज्यादा अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, तो हाउ यू मैनेज दैट ऑल, मतलब एकेडमिक के साथ साथ ये सारी चीजें करना, मतलब। यार व्हेन आई टॉक अबाउट एक सीजीपीए होती है ना तुम्हारी, सीजीपीए हाँ। लाइक लोग बोलते हैं कि सीजीपीए नहीं इंपॉर्टेंट होती, कंपनीज वाले तो 7 सीजीपीए मांगते हैं, 7.5 सीजीपीए होनी चाहिए, उसके ऊपर मतलब सब कुछ ठीक है। मतलब लोगों का यही पर्सपेक्टिव है, मतलब तुम्हें भी हाँ हाँ। अगर इफ इन केस तुम फ्रेशर्स हो तो तुम्हें बहुत लोगों ने बोला होगा कि यार सीजीपीए इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है, कोई बात नहीं, कम सीजीपीए भी चल जाएगा, काम प्लेसमेंट हो जाती है, जिसकी 7 सीजीपीए थी वो भी बताए इसमें इस कंपनी में चला गया, जिसकी 6 सीजीपीए थी वो भी। तो दे आर रेयर एग्जांपल्स, मतलब कोई एक आध बच्चा अगर किसी की 6.5 सीजीपीए थी, अगर वो अमेजोन में चला गया, तो तुम सिर्फ उस एक बंदे को देख के थोड़ी चलोगे कि हाँ भाई हाँ। वो एक बंदा चला गया तो हम सब चले जाएंगे। तो इट इज नॉट लाइक दैट। सीजीपीए तुम्हारी काम आती है तुम्हारे, तुम्हें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, मतलब सीजीपीए अलोंग विद योर जो तुम्हारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम किसी और ब्रांच से हो तो तुम्हारे लिए वेरी बहुत डिफिकल्ट है ना कि ये दोनों चीजें कैसे मैनेज हो। तो ये है कि उस ब्रांच में अगर तुम इंटरेस्टेड, अगर तुमने आईटी फील्ड में ही जॉब लेनी है, तो जब तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं उसके 10 दिन पहले सब कुछ छोड़ दो, उसके 10 दिन पहले तुम सिर्फ एग्जाम्स की तैयारी करो। लाइक दिस वाज व्हाट आई फॉलोड, ठीक है। कि जब मेरे एग्जाम्स हैं, चाहे वो माइनर 1 है, चाहे अभी माइनर 1 माइनर 2 होते हैं ना। नहीं, अभी तो सर कॉन्टिन्यूअस अभी असेसमेंट होता है। ऑनलाइन तो नहीं, हमारे टाइम पे इट वाज लाइक कि माइनर 1 होते हैं, फिर माइनर 2 होते हैं, फिर एंड सेमेस्टर होते हैं, 3 एग्जाम्स होते थे एक सेमेस्टर में। तो बस जब माइनर 1 आ गए, वो 3 दिन का फेज होता था, 3 दिन में 6 पेपर होते थे, रोज के 2-2 पेपर होते थे, 20-20 मार्क्स के।
तो वो वाला फेज था कि मतलब इट वाज कि तुम 1-1.5 हफ्ता पहले पढ़ना शुरू कर दो और अच्छे से सिर्फ वही चीज पे पढ़ो और सब कुछ छोड़ दो, देन यू विल गेट अ गुड सीजीपीए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हें तुम्हारे। एंड उसके अलावा पूरे साल तुम जो करना चाहते हो वो करो, ठीक है। ऐसे तुम्हारा टाइम मैनेज हो जाएगा। उसके अलावा जैसे ये सारी कम्युनिटीज वाली चीज थी, मतलब वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना या डीएससी लीड या ये सब, तो इट वाज लाइक कि हमारी कॉलेज में ये रूल था कि तुम कॉलेज टाइमिंग में यू कांट ऑर्गेनाइज कोई इवेंट या कुछ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें अगर तुम 5:30 हमारा सब कुछ ओवर होता था, तो यू कैन हैव द टाइम आफ्टर 5:30, तुम 5:30 के बाद कुछ मर्जी कर सकते हो। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस थी। आई वेंट टू आईटी बिल्डिंग, वहां पे जाके वर्कशॉप करवा दी। ये मतलब टाइम पास हो गया। किसी का ऐसा था कि किसी ने डांस ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, वो 5:30 के बाद जाके अपनी डांस की प्रैक्टिस कर रहा है। किसी ने ड्रामा ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, वो 5:30 के बाद जाके ड्रामा कर रहा है। तो इट इज ऑल कि तुम्हारी प्रायोरिटीज कैसे हैं। तो मतलब ऐसे टाइम मैनेज हो जाता है, कोई इतनी वो प्रॉब्लम नहीं है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम किया है। आई वॉज इन द ड्रामा टीम ऑल्सो, मैंने नुक्कड़ नाटक भी किया है। आई वॉज इन ये क्या कहते हैं एंकरिंग ऑल्सो, मतलब कॉलेज में इवेंट्स होते थे ना, तो आई यूज्ड टू बी ऑन स्टेज फॉर एंकरिंग। जैसे टेक्निकली होता था, उत्कांश होता था, तो ये हमारे कॉलेज के फेस्ट है। तो इट इज ऑल लाइक कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, मतलब तुम कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हो। एंड हर चीज को उतना स्पेसिफाइड टाइम देके मतलब चीजें मैनेज हो जाती हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। अगर तुम ज्यादा, मतलब मैंने सीरीज नहीं देखी, बट ये है कि मैंने सीरीज वगैरह नहीं देखी जैसे लोग देखते हैं ना, बिंज वॉच कर लिया हमने, नेटफ्लिक्स देख ली, तो दैट वाज द लीस्ट पार्ट, वो मैं नहीं देखा। बट हाँ, बाकी जितना भी टाइम था उसको ऐसे मैनेज कर दिया। अब थोड़ा बहुत ऐसा है कि अब सीरीज देखना शुरू किया, बट पहले नहीं देखा। और सर जैसे आपने बताया कि डीएससी आपने शुरू की कॉलेज में कोडिंग क्लब से, डीएससी कैसे कन्वर्ट किया, उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप। यार वो इट वाज लाइक बहुत सारी मतलब कंट्रोवर्शियल सी जर्नी है उसमें। जैसे फर्स्ट ईयर के बाद इट वाज लाइक कि हमने ऐसे क्लब स्टार्ट करना है, क्लब स्टार्ट करना है। ऐसे हम ना ऐसे 2-3 लोग थे, ऐसे क्लब स्टार्ट करना है, तो हमने ऐसे अप्रोच किया हमारे कॉलेज फैकल्टीज को कि हमने ऐसे क्लब स्टार्ट करना है। बट द सपोर्ट वाज नॉट देयर फ्रॉम देम। वो नहीं चाह रहे थे कि ऐसे कुछ करो। वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो। एंड मोर ओवर आई वाज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, तो फिर ऊपर से ये थोड़ा कोडिंग वाला पार्ट सीएससी का होता है, तो इट वाज लाइक कि हाँ यार, सीएससी वाले लोग अगर ये करें तो अच्छा लगता है, ईसी वाले लोग क्यों कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन थी, मतलब कुछ सीएससी डिपार्टमेंट से कुछ थोड़ी सी दिक्कतें थी कि हाँ नहीं 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 कर सकते, तो वैसे नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल है। बट देन आई अप्रोच समबडी, मतलब हमारे कॉलेज में मतलब बहुत सारे चक्कर लगवाते हैं हमारे कॉलेज में अगर कोई भी काम होना हो। मतलब नॉट अ बैड थिंग मैं कहूंगा, मतलब ठीक है, मतलब इट्स जनरल, हर किसी हर जगह होता है, हर गवर्नमेंट कॉलेज हर जगह होता है कि तुम्हें कोई भी काम करवाना है छोटा से छोटा, बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं पूरे कॉलेज के। मतलब ऐसे एक बंदे से साइन करवाओ, फिर वो बंदा डाइवर्ट करेगा दूसरे बंदे को, दो दिन उसके पास एप्लीकेशन पड़ी है, फिर वो दूसरे तीसरे बंदे को करेगा। मतलब इट वाज लॉट ऑफ हॉच पॉच। थर्ड सेमेस्टर में ये सब हुआ कि फिर मतलब एट द एंड जब फाइनल साइन वाइन हो गए डायरेक्टर सर के सबके, फिर उसके बाद ऑफिशियल हो गया। बट इट वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल आई वुड से। उसके बाद ये थर्ड सेम के एंड तक ये कोडिंग क्लब एनआईटी जे मतलब एस्टैब्लिश हो गया था कॉलेज में, से ऑफिशियल नोटिस पेपर्स पे आ गया था। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर की स्टार्टिंग में आई वाज लाइक देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग अ डीएससी लीड। तो मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि आप डीएससी लीड बन सकते हो एंड आपको इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा, ये सारा प्रोसेस है। तो आए ठीक है, मैंने उनको बोला कि क्या है सारा सीन। उसके लिए कुछ उस टाइम पे ना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वगैरह चाहिए होती थी कि हाँ ये बंदे को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, ये बन सकता है। तो मतलब वो सारी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ली, फिर कुछ अपने प्रोजेक्ट्स जो बनाए हुए थे वो गिटहब वगैरह पे डाले, फिर उनकी इंटरव्यूज होती हैं उस टाइम पे कि इस बंदे को डीएससी लीड बनाना, के नहीं। फिर वो डीएससी लीड जब एक बार हम लाइक जनवरी 2019 में बन गया था मैं डीएससी लीड अपने कॉलेज का। फिर उसके बाद तो मतलब इट वाज लाइक कि हम दोनों पैरेलल चला रहे हैं, कोडिंग क्लब भी चला रहे हैं, डीएससी भी चला रहे हैं। बट ठीक है, मतलब इट इज अप टू कि कोई इवेंट हम कोडिंग क्लब के नाम पे चल रहा है, कोई इवेंट डीएससी के नाम से चल रहा है। लाइक करंटली लाइक मोस्टली आपने अभी जो बैच है उसको डीएससी ज्यादा इंट्रोड्यूस हुआ होगा ना, मतलब शायद तुम्हारे सीनियर्स ने तुम्हारी वर्कशॉप्स ली होंगी या इंटरेक्ट में भी डीएससी और ईसी की 1-2 वर्कशॉप में तो आई हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ। बट या ऐसे थी जर्नी, काफी स्ट्रगल भरी। बट उसके बाद से तो वी हैव लाइक अभी तक का रिकॉर्ड इज लाइक कि हमने 40 से ज्यादा वर्कशॉप सेमिनार्स करवा दिए हैं अंडर ये डीएससी वाला क्लब, 40+ इवेंट्स। ओके सर,
तो सर आपने ना फिर सैमसंग में भी इंटर्न करी है, इसरो में भी इंटर्नशिप्स करी है, तो ये जर्नी कैसी रही आपकी इंटर्नशिप्स वगैरह की, कैसे आपने उसे ग्रैब की अपॉर्चुनिटी को? यार मतलब इंटर्नशिप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस मिलता है तुम्हें। जैसे तुम फ्रेशर्स जॉब लेने जाते हो ना, तो फ्रेशर्स में कंपनीज विल सी कि इस बंदे ने काम किया हुआ है इंडस्ट्री में कि नहीं काम किया हुआ, तो वो तुम्हारी इंटर्नशिप्स मैटर करती है उस पॉइंट पे कि हाँ यार इस बंदे ने इस कंपनी में इंटर्नशिप किया, तो हाँ इसको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, तुम इसको मतलब इट विल बी अ प्लस पॉइंट तुम्हारे रिज्यूमे के लिए कि तुमने किसी कंपनी में इंटर्नशिप किया है। तो जैसे मैं बात करूं फॉर इसरो, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉलेज में आती है हमारे इसरो की, मतलब इट्स बेसिकली फॉर मशीन लर्निंग। जिस बंदे का बैकग्राउंड पाइथन वाला है या मशीन लर्निंग वाला है, तो दे हैव अ टेलीफोनिक इंटरव्यू। उसमें हमारी टेलीफोनिक इंटरव्यू होती है कि दे सिलेक्ट कैंडिडेट्स, उसमें उसके बाद शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद 2 महीने का हमें एक प्रोजेक्ट देते हैं इसरो में और मेंटर साइन कर देते हैं। तो वो प्रोजेक्ट इट वाज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन मशीन लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स। तो वो वाला प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद दे गए बस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड सर्टिफिकेट। तो ये था फॉर इसरो, बट इट इज अनपेड इंटर्नशिप, मतलब उसमें कुछ स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलता। मैंने टॉक अबाउट सैमसंग, सो सैमसंग जैसे नॉर्मल कंपनीज आती हैं कॉलेज में बहुत सारी, अमेजोन आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, एडोबी आती है, मतलब काफी सारी कंपनी आती है। वैसे सैमसंग हमारे कॉलेज में आई थी हमारे 5th सेमेस्टर के स्टार्ट होने पे। इट वाज वन ऑफ द स्टार्टिंग कंपनीज, मतलब अच्छे स्लॉट में आई थी। तो उनका जैसे पूरा हायरिंग प्रोसेस होता है, जैसे एक ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद 2 राउंड्स ऑफ टेक्निकल इंटरव्यूज हुए थे, फिर एक एचआर इंटरव्यू हुआ था। वो सारे मतलब सैमसंग के लोग हमारे कॉलेज में आके रिक्रूटमेंट करने आए थे इंटर्न्स की। तो फिर जैसे हमारे कॉलेज में 200 बच्चा बैठा था, हमारे बैच का 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईसी एंड सीएससी। तो उसमें से दे शॉर्टलिस्टेड 16 पीपल फॉर टेस्ट, मतलब टेस्ट के बाद उन्होंने 16 बच्चे हायर किए, 16 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए। फिर उन 16 बच्चों की उन्होंने इंटरव्यूज दी, उस मतलब वो सारी इंटरव्यूज जिसकी क्लियर हुई, तो वो एंड पे 3 बच्चे टोटल लेके गए थे। तो 3 बच्चे सैमसंग में इंटर्न की थी हमारे बैच में। तो ऐसे लाइक दिस वाज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर बोथ इसरो एंड सैमसंग। तो सर इसरो में कौन से सेम में लगी थी आपकी? इसरो में इट वाज आई डिड विंटर इंटर्नशिप एट इसरो, मतलब दिसंबर एंड जनवरी 2019 2020, हाँ दिसंबर एंड जनवरी 2020 में इसरो की सर ये इंटर्नशिप की थी 2 मंथ्स जो विंटर टेक्निकल इंटर्नशिप। कंपनीज आती हैं जैसे सैमसंग हो गई, गूगल हो गई इंटर्नशिप्स के लिए, तो उसमें हर ब्रांच का बैठ सकता है मतलब स्टूडेंट, या फिर सिर्फ सीएससी और ईसी में लिमिटेड होता है? नहीं, देयर इज की कुछ मतलब इट डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज होती हैं जो सारी ब्रांचेस अलाउ कर देती हैं, मतलब ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ब्रांचेस कंसिडर जैसे, एंड कुछ कंपनीज होती हैं कि जो स्पेसिफिकली ईसी सीएससी को ही प्रेफर करती है, मतलब वही बच्चे प्रोसेस में बैठ सकते हैं। जैसे हम बात करें अमेजोन की, तो अमेजोन आती है तो अमेजोन हर ब्रांच को अलाउ करती है, अमेजोन में कोई ब्रांच का बच्चा बैठ सकता है। जैसे इस बार स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आई थी, उसमें भी हर ब्रांच का बच्चा बैठ सकता था। बट जैसे अगर हम बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग में इट वाज ओनली ईसी सीएससी, शायद आईसी भी थी, आई एम नॉट श्योर, बट सीएससी ईसी तो थी। एंड मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट आती है तो माइक्रोसॉफ्ट भी सिर्फ सीएससी ईसी अलाउ करती है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, कुछ कंपनी सारी ब्रांचेस अलाउ करती हैं, कुछ कंपनीज नहीं अलाउ करती। तो मतलब अगर किसी ने नॉन टेक वाले ने बैठना हो इंटर्नशिप में, तो वो फिर ऑफलाइन अप्लाई करेगा कि मतलब उसका क्या प्रोसीजर होता है? मतलब जैसे आपने कहा कि मतलब किसी ने ऑफ सिर्फ कैंपस, अपने फ्यूचर बनाना ही टेक्निकल कंपनी में है, अगर प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए इंटर्नशिप्स तो करनी पड़ेगी ना मतलब। वैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी कैंपस में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तुमको वो ग्रैब करनी है। अगर तुम सीएसईसी से नहीं हो ना, तो तुम्हारी प्लेसमेंट के लिए तो काफी कंपनी आती है जो सारी ब्रांचेस को अलाउ करती है। इंटर्नशिप के लिए कम कंपनीज आती हैं जो सारी ब्रांचेस को अलाउ करती है, प्लेसमेंट के लिए काफी कंपनीज आती हैं जो सारी ब्रांचेस को अलाउ करती हैं। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जितनी कंपनीज कॉलेज में आ रही है तुम उनमें प्लेसमेंट लेने की कोशिश करो, क्योंकि दैट इज द इजियर वे आई वुड से। ठीक है, वो थोड़ा सा पाथ आसान है कॉलेज में आने, क्योंकि कॉलेज में कंपटीशन कम है ना। कॉलेज में सिर्फ तुम्हारे कॉलेज के बच्चे हैं। अगर तुम ऑफलाइन या ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाहते हो तो इट इज ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया से बच्चे उस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें से तुम शॉर्टलिस्ट हो रहे हो। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, जो कंपनीज कॉलेज में आ रही है तुम्हें पहले उन पे ट्राई करना है। उसके बाद लाइक इट इज की ऑफ कैंपस बहुत सारी कंपनीज की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। इफ यू हैव दो स्किल्स, अगर तुम्हारे पास वो सारी स्किल्स हैं जो कंपनी को चाहिए, तो देन डेफिनेटली तुम ऑफ कैंपस अप्लाई करो थ्रू रेफरल्स, थ्रू उनकी ऑफ कैंपस ओपनिंग्स, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, वो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगी कि कैसे अप्लाई करते हैं। मतलब मैंने भी मतलब मैं भी डालता रहता हूँ लिंक्डइन पे पोस्ट वगैरह, जिसमें यही चीजें थोड़ी डिस्कस करते हैं कि ऑफ कैंपस बच्चे कैसे चीजें, कैसे कंपनीज में बैठ सकते हैं, कैसे जॉब्स ग्रैब कर सकते हैं।
तो या ऐसी दिस इज समथिंग जो मैं इस पे बोलना चाहता हूँ। सर आपने भी बताया ना कि आप 200 स्टूडेंट में 3 स्टूडेंट में शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो हाउ यू प्रिपेयर्ड योर जर्नी, मतलब आपने उसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की थी एंड टाइम पे, या मतलब क्या टेस्ट, मतलब कैसे हुआ था, क्या हुआ था थोड़ा सा? यार मतलब ऐसा है कि उसके ना सैमसंग प्रोसीजर इज कि दे गिव यू वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है उसके कोडिंग टेस्ट में, ठीक है सर। एंड दैट क्वेश्चन इज यू विल बी गेटिंग 3 hours टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। उस टाइम पे मतलब कॉलेज में ऐसे फिजिकल मोड में टेस्ट होते थे, मतलब तुम्हें आईटी बिल्डिंग जाना पड़ता था लैब में, और वहाँ पे इन्विजिलेशन चल रही है, वहाँ पे कंपनी से लोग आए हुए हैं, और तुम्हें ऐसे लैब्स में बैठ के 3 घंटे बैठ के एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। एंड वो क्वेश्चन इज कि उसमें 50 टेस्ट केस होते हैं। मतलब अगर ये मतलब अगर बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए होंगे जीएफजी या लीड कोड पे, तो दे वुड नो कि ऐसे टेस्ट केसेस होते हैं क्वेश्चंस के। एंड पीपल जैसे नॉर्मल तो 8 टेस्ट केस होते हैं, 10 टेस्ट केस होते हैं, 16 टेस्ट केस होते हैं, बट उस क्वेश्चन के 50 टेस्ट केस होते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का था वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स था। जैसे कि मैं हर जगह कहता हूँ, जैसे तुम उसके लिए साइट्स रेफर कर सकते हो, जीएफजी लीड कोड, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट इज वन थिंग। मतलब मैंने भी अपने फोर्थ सेमेस्टर में सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और जो फोर्थ सेमेस्टर के बाद वाली हॉलीडेज आती हैं दैट दे आर मोस्ट क्रूशियल, उनको तुम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे। तो जैसे तुम्हारी वो फोर्थ सेकंड ईयर की वेकेशन खत्म होती है, उसके तुरंत बाद यू विल फेस कंपनीज, तो वेकेशन में बहुत अच्छे से तुमको तैयारी करके आनी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ तुम्हारे सीएस फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्वेश्चंस पूछते हैं वो, एंड डीबीएमएस के क्वेश्चंस कुछ पूछते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स से, बाकी तुम्हारा रिज्यूमे कैसा है, रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, मतलब दे वांट कि बंदे ने काम किया होना चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट, एंड इट इज नॉट कि जिसको सब कुछ आता है उसको ले जाएंगे। इट इज कि जिसका थोड़ा मतलब लर्निंग वाला माइंडसेट है ना, कि बंदा सीखना चाहता है कुछ, मतलब वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं इंटरव्यू में। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस कर दिए तो तुम्हें ले जाएंगे, मतलब वो देखते हैं कि बंदा अप्रोच कैसी यूज कर रहा है, या बंदा सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा है। दैट इज समथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम इंटरव्यूज की बात करें। ओके सर। तो सर बीटेक के बाद आप कौन सी चीज़ रेकमेंड करते हो, फॉरेन स्टडीज या प्लेसमेंट यहाँ पे? यार इट इज ऑल्सो पर्सनल चॉइस। वैसे तो मतलब दोनों के ही एस्पेक्ट्स अच्छे हैं। अगर तो बंदे को इंटरेस्ट है रिसर्च में, या सच में ही हैज कि नहीं नहीं उसको पढ़ना ही है, तो यू विल एट द एंड तुम्हें करनी जॉब है, ठीक है। अगर तुम फॉरेन स्टडीज भी जाते हो तो उसके बाद देयर आर 2 ऑप्शंस की, या तो यू कैन गेट इनटू सम यूनिवर्सिटी, तुम वहां पे टीचिंग करने लग जाओ फॉरेन यूनिवर्सिटी में, दैट इज वन थिंग, या इज कि यू कैन गेट अ जॉब इन अ फॉरेन लोकेशन डायरेक्टली। अगर तुम यहाँ से जैसे तुमने बीटेक करी, यू विल गेट अ जॉब इन सो एंड सो कंपनी, ठीक है, तुम्हारी प्लेसमेंट हो गई। अगर तुम ये हायर स्टडीज के लिए जाते हो, मे बी अगर तुम एमटेक करते हो, एमटेक यहाँ पे भी अवेलेबल है। अगर तुम आईआईटी से एमटेक करते हो, आईआईटी से एमटेक करने के बाद भी यू कैन हैव अ प्लेसमेंट, और यू कैन गो फॉर पीएचडी, एंड फिर तुम असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओगे कॉलेज में। दैट इज वन थिंग। अगर तुम बाहर से पढ़ने जाते हो, जैसे जीआरई करके किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो, तो वहां से ऐसा है कि तुम्हारी जॉब प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो जाएंगे। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया में ऐसे बोलते हैं कि इस बच्चे का 1 करोड़ का पैकेज लग गया, या 1.5 करोड़ का पैकेज लग गया, तो वो फॉरेन के पैकेजेस होते हैं। मतलब ऐसे इंडिया में जैसे हमारे कॉलेज में तो ऐसे कोई कंपनी ना कि जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज देती है, तो वो फॉरेन के पैकेजेस होते हैं। जैसे बंदे ने एमएस बाहर मतलब बीटेक यहाँ से की, अपनी हायर स्टडीज बाहर से की, फिर वो बाहर से उसको उतने का पैकेज लग गया, क्योंकि वो डॉलर्स में उनकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी हमारे यहाँ की पैकेज की वैल्यू है। मतलब वहां पे 1 करोड़ की वैल्यू और यहाँ पे 1 करोड़ की वैल्यू में डिफरेंस है ना, तो वहां का 1 करोड़ 1.5 करोड़ होता है। जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि इतने इतना का पैकेज लग गया, करोड़ का पैकेज लग गया, तो इट इज नॉट लाइक दैट। मतलब रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। मतलब इट इज ऑल्सो आई वुड से पर्सनल चॉइस कि किसी को हायर स्टडीज जाना है या किसी को प्लेसमेंट लेनी है। बट एट द एंड मतलब व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि मोस्टली लाइक हमारे बैच में 90% लोग प्लेसमेंट ले रहे हैं। हायर स्टडीज अभी किसी का कोई प्लान नहीं, हमारे बैच की बात कर रहा हूँ। और जॉब इन्वायरमेंट भी मतलब इंडिया में ज़्यादा सही है कि फॉरेन में, अगर किसी को मतलब फॉरेन में यार अभी प्लेसमेंट इसका तो लगे? नहीं, इसका वैसे मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली मतलब वहाँ पे वर्किंग लोकेशंस अच्छी हैं, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, तुम्हें थोड़े पर्क्स ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। बट फिर वही है ना, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतनी ज्यादा है। मतलब अगर वहाँ पे पैकेज बहुत ज्यादा दे रहे हैं ना, तो यू विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी देयर। जैसे बे एरिया में किसी की जॉब लगती है, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। अब इंडिया में जितनी पे मिलती है, जैसे बैंगलोर में जॉब करनी है एंड तुम्हें एक बे एरिया में जॉब करनी है, तो तुम्हारा पैकेज का डिफरेंस भी बहुत है, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ लिविंग का डिफरेंस भी बहुत है।
तो आपस में कंपनसेट हो जाता है, कोई इतना वो नहीं है कि वो। बट ऑब्वियसली अगर लोगों को शौक होता है कि बाहर जाना है, या पंजाब में तो स्पेशली होता है कनाडा जाना है, अगर 12th के बाद कनाडा नहीं गए तो बाहर मतलब जॉब के बाद कनाडा जाना है, तो दैट इज समथिंग कि फिर तुम सोच सकते हो बाहर जाना है तो। सर मतलब एक क्वेश्चन और था मेरा कि जैसे बहुत से बच्चे ना सर जैसे CS EC से नहीं होते, तो और इस समय जो ऑनलाइन सेमेस्टर चल रहा है इसमें ब्रांच अपग्रेड होना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट में ब्रांच मतलब बड़ी मुश्किल से, तो क्या माइनर डिग्री एक ऑप्शन हो सकता है कि हम माइनर डिग्री CSE में रख ले और एक उससे ऑप्शन क्रिएट कर सकें? नहीं मतलब माइनर डिग्री सीएस में तुम्हारे मतलब एज सच उसका कुछ ये नहीं होता कि कंपनीज विल मेक यू एलिजिबल फॉर जॉब्स। मतलब अभी तक जो होता आ रहा है, मतलब हमारे जूनियर्स के टाइम पे माइनर डिग्री इंट्रोड्यूस हुई थी, हमारे टाइम पे माइनर डिग्री नहीं थी। अच्छा सर। तो इट इज लाइक कि उनको कंपनीज में तो नहीं अलाउ करते जिनके पास माइनर डिग्री है, बट ये है कि इफ यू हैव इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस, तुम ऑफलाइन ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाहते हो, तो तुम्हें थोड़े से सब्जेक्ट्स को ज्यादा पढ़ा देंगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा देंगे या DBMS पढ़ा देंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स तुम्हें माइनर डिग्री में पढ़ा देते हैं CS की। बट इट इज कि तुम वो सब्जेक्ट्स खुद भी सीख सकते हो, तो कोई इतना ज्यादा बेनिफिट फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है। ओके सर। सो सर नाउ एज वी फार आर एज कॉलेज की प्लेसमेंट्स आर कंसर्न, तो इतना फायदा नहीं है माइनर डिग्री का। मतलब ये तुम अपने जो करंट सीनियर्स हैं उनसे भी कंफर्म कर सकते हो, एंड लाइक दे विल बी मोर गुड इन अ पोजीशन टू आंसर दिस। ओके हमारे सर। बैच में इट वाज माइनर डिग्री नहीं थी। Okay, sir. Now we are moving to the second part of the video. We have some questions from the audience to you, sir. So first question asked from you. ओके, तो सर फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, तो इनमें से अगर किसी को मतलब जो नॉन टेक है, जैसे हम केमिकल के हैं, तो हमें कोई डोमेन चूज करना हो तो कौन सा करें? किसमें ज़्यादा स्कोप होगा आगे जाके, चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं? यार ऐसे इट इज नॉट कि किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में ज्यादा स्कोप है, बट ये है कि टाइम कंसिडरेशन ज्यादा है। जैसे किसी बंदे ने फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें वेब डेवलपमेंट को और मशीन लर्निंग को, ठीक है, तो मशीन लर्निंग इज अ बहुत वास्ट फील्ड है। ऐसा नहीं है कि तुम 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, लोग 2-2 3-3 साल करते रहते हैं तो भी कुछ नहीं आता। तो वेरएज अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें, तो अगर तुम डिसेंट अपना टाइम स्पेंड करते हो 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, तो तुम अच्छे 2-3 प्रोजेक्ट्स बना लोगे वेब में, बोथ बैक एंड एंड फ्रंट एंड। तो ये है कि इट इज कि तुम टाइम अपना किसको कितना दे रहे हो उसके हिसाब से तुम्हें चूज करना चाहिए। मतलब एंड इट इज नॉट लाइक कि कोई मशीन लर्निंग वाला बंदा ज्यादा प्रेफर्ड होगा प्लेसमेंट में, या ये वेब वाला कम प्रेफर्ड होगा। मतलब ऐसे कोई बात नहीं है, अगर तुमने वेब में अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं तो इक्वली काउंट होगा। और मतलब जैसे तुमने ये काफी चीजें बोली, क्लाउड हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये मशीन लर्निंग हो गया, वेब हो गया, एंड्रॉइड हो गया, बट जैसे साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड अभी इतने इंट्रोड्यूस नहीं है। मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई एक आध बच्चा कर रहा होगा, हमारे कॉलेज में तो नहीं है। मतलब इनका इतना ज्यादा चलन नहीं है। बट अभी जैसे क्लाउड में तो हमने काफी सारी वर्कशॉप ली है, तो कुछ कुछ बच्चों को इंटरेस्ट आता है क्लाउड में। जैसे हम GCP पे करवाते हैं काम, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, या Amazon वेब सर्विसेज, AWS हो गया। तो अब थोड़ा थोड़ा मतलब दे आर लाइकिंग द थिंग्स, उनको थोड़ा समझ आ रहा है कि चीजें हैं, बट इतना ज्यादा नहीं है। बट 3 डोमेन जैसे वेब हो गया, एंड्रॉइड हो गया एंड मशीन लर्निंग हो गया, इन पे काफी बच्चे, मतलब कुछ का डोमेन ही सारा एंड्रॉइड है, उन्होंने काफी सारे एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। अब जैसे फॉर फर्स्ट ईयर हमने भी एक रिसेंटली कुछ कंडक्ट किया था फॉर एंड्रॉइड, एंड्रॉइड फ्लटर स्टडी जैम, शायद एंड्रॉइड स्टडी जैम्स। तो उसमें काफी बच्चों ने एंड्रॉइड सीखा। तो अगर उनको अच्छा लगा तो दे विल मूव ऑन विद एंड्रॉइड, अगर उनको नहीं अच्छा लगा तो वो वेब ट्राई करेंगे। अगर उनको मतलब यू हैव टू ट्राई। अगर अब तुम्हारे पास फर्स्ट ईयर में बहुत टाइम है, तुम फर्स्ट ईयर में थोड़ा थोड़ा सारा कुछ ट्राई करके देख लो। तुम थोड़ा वेब भी ट्राई करके देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये मेरे लिए बना है, तो तुम उसमें ज्यादा कंटिन्यू कर लो। तुमने एंड्रॉइड स्टार्ट किया, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार चीजें समझ आ रही है, मजा आ रहा है काम करने में, तुम एंड्रॉइड परस्यू कर लो। मशीन लर्निंग अभी आई वुड नॉट रेकमेंड कि तुम अभी स्टार्ट कर दो, बट हाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ यार ये टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है और मुझे करनी है। तुम ये तुम आगे वाले ईयर्स में एक्सप्लोर कर सकते हो, जब तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया एंड जब तुम्हारा एक ये वेब या एंड्रॉइड में से कोई एक चीज हो गई, उसके बाद तुम मशीन लर्निंग स्टार्ट करते हैं। मतलब फ्यूचर के स्कोप से कुछ भी कर सकते हैं, ये नहीं कि एक चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा मतलब ऐसा नहीं है कि 4-5 किसी सालों एक में। चीज का बहुत ज्यादा स्कोप है, किसी एक चीज का कम स्कोप है, ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। हर चीज की वैल्यू है, हर चीज के लिए तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।
इट इज नॉट कि मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा, मतलब लोग बोलते हैं कि डेटा साइंटिस्ट की जॉब इज द मतलब मोस्ट सेक्सीएस्ट जॉब इन 21st सेंचुरी, बट मतलब अगर हम बीटेक ग्रेजुएट्स की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए बहुत कम जॉब्स हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट, मतलब बहुत कम जॉब्स। तुम्हें वेब डेवलपर की, जावा डेवलपर की, एंड्रॉइड डेवलपर की बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी, बट डेटा साइंटिस्ट की बहुत कम जॉब्स हैं। तो इट इज नॉट लाइक दैट, मतलब तुम्हें अभी तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यूटिलाइज करो इसको, अच्छे से सीखो, मतलब जो टेक्नोलॉजी में तुम्हारा मन लगता है, जिसमें मजा आता है, उसमें कंटिन्यू करो। ओके सर, तो सर सेकंड क्वेश्चन है ऑडियंस की तरफ से कि सर वी आर व्हाट वी हैव टू हाउ वी हैव टू मैनेज डीएसएल को प्लस वेब डेवलपमेंट एंड ओपन सोर्स लाइक दिस थिंग्स, मतलब कैसे मैनेज करें मतलब। पहली चीज तो इस मतलब ये क्वेश्चन इज वेरी फेमस, मतलब बहुत सारे लोग हाँ लिंक्डइन पे भी पूछते रहते हैं कि सर मैनेज कैसे करें डीएसएल को और डेवलपमेंट को। तो पहली चीज है कि अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो या अगर तुमने सेकंड ईयर स्टार्ट कर लिया, फर्स्ट ईयर में तो चलो हम मान के चलते हैं कि बच्चों ने अपना टाइम मजे मजे में गुजार दिया, तुम सेकंड ईयर में आ गए, ठीक है। सेकंड ईयर में आके पहली चीज जो तुम्हारी है ना, फंडामेंटल चीज डीएसएल को है, मतलब तुम्हें डीएसएल को करने हैं। एंड जब तक यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ इन डीएसएल को, तुम सारे टॉपिक्स के फंडामेंटल्स पढ़ लो, उनके 10-10 15-15 20-20 क्वेश्चंस पर टॉपिक ट्राई कर लो, कम से कम 100-150 क्वेश्चंस तुमने ट्राई कर लिया होना चाहिए सारे डीएसएल को उसका। उसके बाद यू विल हैव अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ यार मैंने ये सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, मेरे को कॉन्फिडेंस है। उसके बाद यू कैन, मतलब इसमें यू नीड एटलीस्ट 3 से 4 महीने, कम से कम 3-4 महीने चाहिए तुम्हें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने में, उनके 10-10 15-15 20-20 क्वेश्चंस करने में। अब तुमने 4-5 महीने में ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है, उसके बाद यू कैन मैनेज योर टाइम मोर वेल। जैसे तुमने फिर उसके बाद हाँ थोड़ा सोचा कि यार अब मेरे को डीएस से सफिशिएंट हो गया है, अब मुझे 1-2 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं अपना रिज्यूमे अच्छा करने के लिए, तो तुमने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। तो वेब डेवलपमेंट इतना ज्यादा बड़ा काम नहीं है, यू हैव मतलब तुम 2-2.5-3 महीने में सीख सकते हो काफी सारी चीजें। तो तुम उस टाइम पे ऐसे करो कि एक बार तुमने 4 महीने डीएसएल को उसको दे दिए, उसके बाद वेब स्टार्ट कर दिया, साथ साथ तुम रोज के दिन में 2 या 3 क्वेश्चन डीएसएल के करते रहो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के, ठीक है। और साथ में तुम्हारा वेब का जो तुम कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, 1.5-2 महीने में तुमने साथ में एक अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया, साथ में तुम रोज 2-3 3-4 क्वेश्चन करते रहे डीएसएल के, तो तुम्हारा डीएसएल का फ्लो भी बैठ रहा है, तुम्हारा डेवलपमेंट का फ्लो भी बैठ रहा है। एंड आफ्टर 2 महीने जब तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो तुम्हारा डीएस से भी मतलब टच में रहे, तुम डीएस से भी प्रिपेयर कर रहे हो, तुमने फंडामेंटल तो पहले क्लियर कर रखे थे। उसके बाद तुम उस स्टेट में हो गए कि हाँ यार अब मेरा रिज्यूमे भी कंप्लीट है, अब मेरे को डीएसएल को भी आता है, अब मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और अपने मतलब थोड़ा मॉक इंटरव्यूज वगैरह दो, तुम्हारी इंटर्नशिप्स आ जाती हैं फोर्थ सेमेस्टर की एंडिंग तक, फोर्थ सेमेस्टर की एंडिंग और फिफ्थ सेमेस्टर की स्टार्टिंग तक। तो ऐसे थोड़ा सा मैनेज हो सकता है अगर तुम सेकंड ईयर में। मतलब फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा साथ लेके चले ताकि किसी से भी टच ना छूट जाए। हाँ हाँ परफेक्ट, ऐसे ऐसे। और सर आजकल मतलब जैसे काफ़ी वर्कशॉप्स लगती हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे गूगल का GCR होता है, गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग, और ऐसे मतलब काफ़ी होते हैं। तो मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें कि जिसमें इनरोल करना चाहिए, किसमें कहीं नहीं करना चाहिए, मतलब टाइम वेस्ट ना हो बच्चों का, ये क्वेश्चन है एक। यार मतलब अब जैसे अब एवरीथिंग इज इन द वर्चुअल सेटअप, तुम्हें रोज वेबिनार के मैसेज आते होंगे कि यार इस कंपनी का वेबिनार है, वेबिनार ज्वाइन कर लो, ये मीटिंग है ये ज्वाइन कर लो, इसमें तुम्हें ये करा रहे हैं ये ज्वाइन कर लो, तुम 1000 रुपया दे दो हम तुम्हें ये दे देंगे, तुम 5000 रुपया दे दो हम तुम्हें ये वाला कोर्स दे देंगे। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी आती रहती होंगी तुम्हारे ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में या ऐसे ग्रुप्स में कि मतलब बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स हैं। एंड अभी जैसे आफ्टर द लॉकडाउन तो ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, मतलब पहले इतने ज्यादा ये वेबिनार्स वगैरह नहीं होते थे, अब तो बहुत ज्यादा वेबिनार्स होने लग गए हैं। तो मतलब पाथवे मैंने बता दिया है कि तुम्हें करना क्या है, मतलब एट द एंड तुम्हारा कॉलेज में आने का गोल क्या है। अब तक तुमने सारी पढ़ाई की है, 12th तक तुमने पढ़ाई की है, कॉलेज में भी तुम पढ़ाई करोगे, तुम्हारा कमाने वाला फेज कॉलेज के बाद शुरू होगा ना, है ना। मतलब तुमने जी नर्सरी सर। से लेकर 12th तक पढ़ाई की है, कॉलेज में भी 4 साल तुम पढ़ाई करोगे, उसके बाद तुम्हारा कमाने वाला फेज शुरू होगा। तो कमाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, जॉब चाहिए। जॉब के लिए तुम्हारा पाथवे क्या होना चाहिए, मैंने बता दिया क्या कुछ चाहिए तुम्हें। अब अगर तुम्हें चीज लगता है कि हाँ यार इस चीज से रेलेवेंट है, मतलब कहीं पे बहुत अच्छी कोई बंदा है जिसका एक्सपीरियंस है, थोड़ा बैकग्राउंड चेक करो कि बंदा ठीक लग रहा है, जिसको काफी अच्छी डीएसए की नॉलेज है, जिसको काफी अच्छी मतलब इस बंदे ने कुछ सच में अचीव किया है, बहुत अच्छा बंदा है, तो फिर
तुम वो ट्राई कर सकते हो अटेंड करने की। मैं ये नहीं कहूंगा कि मत अटेंड करो, ट्राई करो, मतलब बहुत, मतलब अब तो घर पे बैठे हो यार, मतलब अगर लगता है ना कि हाँ यार ये बंदा अच्छा है, इसको सुनने में मजा आएगा, कुछ सिखा के जाएगा हमें, तो उस चीज को अटेंड करो। एंड जो जो चीजें बोली है ना, जैसे अगर तो वो तुम्हारे डीएसए से रिलेटेड है तो यू शुड अटेंड, तुम्हारी डीएसए की स्किल्स बढ़ा रहा है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहा है, या तुम्हारे मतलब जॉब ओरिएंटेड चीज है कुछ, तो उसमें तुम डेफिनेटली अटेंड करो उसको। बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे हमने बहुत कुछ ट्राई किया था अपने टाइम पे, उस टाइम इतना कुछ नहीं होता था, बट जितने भी फिजिकल वर्कशॉप्स वगैरह होती थी तो वो अटेंड कर लेते थे ऐसे। और इसके अलावा ये, अगर तुमने जैसे कोई, फिर तुमने वेब चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल तुमने वेब चूज कर लिया, फिर वेब से रिलेटेड कोई वर्कशॉप चल रही है, जैसे कोई हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, ऑल्दो अनपेड होना चाहिए, पेड की कोई फायदा नहीं उसके बाद। अगर तुमने एक बार डीएसएल को खुद से सीख लिया, एक बार तुमने वेब कर लिया, उसके बाद पेड वाली चीज पे मत जाना, उसके बाद सिर्फ मतलब उसके बाद लोग तुम्हें पे करेंगे। इट इज कि तुम इंटर्नशिप करोगे कंपनी में, लोग तुम्हें पे करेंगे एंड तुमको पे करने की जरूरत नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो ऐसे तुम चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ यार मेरा एट द एंड गोल प्लेसमेंट लेना है, तो मुझे उस प्लेसमेंट के लिए मैंने यहाँ पाथवे बता दिया, ये चीजें हैं, अगर तो कोई चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, तो मुझे वो ज्वाइन करनी है, नहीं तो छोड़ो। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और मतलब बहुत सही चीजें पता लगी हमें, ठीक है। सो और हाँ, हर्ष सर का एक चैनल है, बेसिकली वो उस पे इंटर्नशिप, प्लेसमेंट और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई, और शेयर जरूर कर देना। सर एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए, एक लास्ट मैसेज है छोटा सा। लाइक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि तुम्हारी स्किल्स मैटर करती हैं, एंड तुम्हारी कॉलेज लाइफ है, कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय करना है। ऐसा नहीं है कि सारा टाइम प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के बारे में सोचते रहो, मतलब बहुत सारी चीजें कॉलेज में एक्सप्लोर करने को, ट्राई टू एक्सप्लोर बहुत सारी चीजें। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी फील्ड ही डिफरेंट हो, तुम्हें कुछ और ही नई चीज मिल जाए। तो हर बंदे की रोड मैप सेम नहीं होती, हर बंदे का रोड मैप अलग होता है, तो ट्राई टू एक्सप्लोर, बहुत सारी चीजें हैं, खूब एंजॉय करो कॉलेज में। कॉलेज लाइफ के दिन बार बार नहीं मिलते, तो एंजॉय भी करना है, साथ साथ थोड़ा सा फोकस भी रहना है। एंड थैंक यू सो मच वैभव एंड अमन फॉर हैविंग मी हियर एंड शेयरिंग द एक्सपीरियंस। आई होप इससे काफी लोगों को हेल्प होगी। एंड बस यही था। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।